Hello students, welcome to our English class. We are going to start our chapter A Truly Beautiful Mind related to Mr. Albert Einstein. First of all, I want to give you a brief introduction about the chapter. Albert Einstein was one of the greatest scientists of the world. This lesson throws a light on his life and his work in the field of science and world politics. He was born on March 14, 1879 in the German city of Ulm. He was a normal-looking child, but he had some deficiency as a child. He began to speak very late, and when he spoke, he repeated every word twice. His playmate made fun of him. His parents were not even so careful about him. But from his childhood, he had big interest in science. He was good at studies. He always got good marks, but he didn't like the strict discipline of the school. So he left the school for good. He agreed to study in Switzerland. There he got interested in a fellow student, Mileva Marek. Later he married her. He worked on different scientific theories. He was awarded the Nobel Prize for Physics in 1921. He was showered with honor and invitation from all over the world. When Americans dropped atom bomb over Hiroshima and Nagasaki, he was deeply shaken. He proposed for the formation of the world government. He worked for the development of peace and democracy in the work till he died in 1955. He is remembered even today as a world citizen. So that's the introduction. Let's begin our chapter. Before you read, who do you think of when you hear the word genius? Who is genius? What qualities do you think a genius has? अब आप क्या सोचते हो जब वर्ड आपको जीनियस वर्ड सुनाई देता है तो उसके बारे में आप क्या सोचते हो? और जीनियस कौन है या एक जीनियस के पास कौन सी क्वालिटी आप समझते हो? We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm out 100 years ago. अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एक यंग जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में पढ़ेंगे जिसने क्या है 100 साल पहले क्या कर दिया था? इस वर्ल्ड को एक स्टॉर्म से बाहर निकाल दिया था. In the summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession 4 groundbreaking papers about light, the motion of particles, the electrodynamics of moving bodies and energy. समर में 1905 में 26-year-old पर्सन ने क्या किया? 4 जो पेपर थे ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर से उनको पब्लिश किया. उनमें किस किस चीज़ के बारे में था? लाइट के बारे में था, मोशन ऑफ पार्टिकल्स के बारे में था, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज़ के बारे में था और एनर्जी के बारे में था. His work took up only a few pages in scientific journals but changed forever our understanding of space, time and the entire cosmos and transformed the name Einstein into a synonym for genius. अब क्या किया? उसके जो वर्क्स थे वो क्या था? उनको साइंटिफिक जर्नल्स में कुछ ही जगह मिल पाई, लेकिन जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी स्पेस के बारे में, टाइम के बारे में, कॉस्मोस मीन्स यूनिवर्स, उसके बारे में उन्होंने बिल्कुल उसको बदल दिया, हमेशा के लिए चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया या बदल दिया. और उनका नेम आइंस्टाइन से चेंज होके क्या मानने लगे? लोग उनको जीनियस मानने लगे. उनका एक सिनोनिम रख दिया. सिनोनिम मीन्स सेम वर्ड. 50 years आफ्टर हिज डेथ एल्बर्ट आइंस्टीन जीनियस स्टिल रेन्स. और 50 साल के बाद उनकी डेथ के 50 years के बाद भी क्या था? जो आइंस्टाइन थे उन्होंने क्या थी, उनकी जो टैलेंट था, जो वो जीनियस थे, वो हमेशा ही बने रहे. मतलब इस चीज़ पे उनका टैलेंट सबके सामने आता रहा.
Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. अब क्या था, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे उनका बर्थ हुआ 14 मार्च को 1879 में, कहाँ पे, जर्मन सिटी जो उल्म जगह थी उस पे हुआ, और उनके बारे में, उनकी ग्रेटनेस के बारे में कोई इंडिकेशन नहीं था। जब वो पैदा हुए उनके बारे में कोई कुछ ऐसा नहीं मानते थे कि वो ज़्यादा जीनियस बनेंगे आगे जाके। ऑन द कॉन्ट्रेरी हिज मदर थॉट एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक। फ्रीक मीन्स एबनॉर्मल। और दूसरी तरफ क्या था, जो उनकी मदर थी, एल्बर्ट की मदर थी, उनको एक एबनॉर्मल बच्चा समझती थी एल्बर्ट को। सो हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज। और उनके लिए क्या था, जो उसका हेड था, एल्बर्ट का हेड था, वो कैसा दिखाई देता था, काफ़ी लार्ज दिखाई देता था। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वॉजंट टॉकिंग। अब वो 2.5 की एज में भी बोल नहीं सकते थे, अभी भी बोलते नहीं थे। When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. Twice means double, 2 times. Uttered means speak. और जब क्या था, उन्होंने फाइनली बोलना सीखा तो सिर्फ क्या वो करते थे, वो 2 टाइम्स बोलते थे, हर एक वर्ड को 2 टाइम्स बोलते थे। Einstein did not know what to do with other children and his playmates called him brother boring. अब क्या था, आइंस्टीन नहीं जानते थे जो दूसरे बच्चे हैं उनके साथ कैसे रहना है, और जो उसके प्लेमेट्स थे, उसके फ्रेंड्स थे या उसके साथ खेलने वाले थे, वो उसको, एल्बर्ट को, ब्रदर बोरिंग के नाम से पुकारते थे। सो द यंगस्टर्स प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम। इसीलिए ये यंगस्टर कौन, एल्बर्ट, अपने आप अकेला ही मोस्टली टाइम अपना अकेला ही खेलता रहता था। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़। इट मीन्स ही लव्ड टू प्ले मैकेनिकल टॉयज़। मैकेनिकल टॉयज़ से खेलना वो पसंद करते थे। लुकिंग एट न्यूबॉर्न सिस्टर माजा, ही इज़ सेड टू हैव सेड, फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। अपनी न्यूबॉर्न सिस्टर को देख के, जिसका नाम क्या था, माजा, उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, ये अच्छा है, लेकिन उसके व्हील कहाँ हैं, व्हील्स कहाँ हैं, उसको भी, क्योंकि वो एक मैकेनिकल टॉय समझते थे। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. अब क्या था, एक हेडमास्टर थे जिन्होंने उसके एल्बर्ट के फादर को बताया था कि आइंस्टाइन चाहे कोई भी प्रोफेशन कर ले, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं मिलने वाली थी किसी चीज़ में भी। आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। अब वो आइंस्टाइन ने सीखना शुरू किया या प्ले करना शुरू किया वायलिन एट द एज ऑफ 6 साल की उम्र में। बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू, क्योंकि उसकी मदर चाहती थी वो वायलिन बजाए या सीखे। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड एमेचर वायलिनिस्ट, मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। और वो क्या था, ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड एमेचर वायलिनिस्ट मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। और उसने बाद में क्या किया, एक गिफ्टेड एमेचर वायलिनिस्ट की तरह वो बना। एमेचर मीन्स डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल एन्जॉयमेंट रादर देन एज अ प्रोफेशनल, यानी प्रोफेशनल ना हो के पर्सनल एन्जॉयमेंट के लिए कोई चीज़ करनी। और उसने अपनी ये जो स्किल थी उसके अंदर वायलिन बजाने की, उसको पूरी लाइफ कंटिन्यू रखा, मेंटेन रखा। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल। प्यूपिल मीन्स शिष्य, स्टूडेंट। अब वो बुरा शिष्य नहीं था, बुरा स्टूडेंट नहीं था। ही वेंट टू हाई स्कूल म्यूनिक वेयर आइंस्टाइन्स फैमिली had moved when he was 15 months old and scored good marks in almost every subject. और वो म्यूनिक में हाई स्कूल में गया, जहाँ पे जो एल्बर्ट की जो फैमिली थी
वो भी मूव कर गई थी। और जब वो 15 मंथ्स का था और उसने हर सब्जेक्ट में, ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर किया। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन एंड ओल्ड क्लैश्ड विद हिज टीचर। अब जो एल्बर्ट था उसको स्कूल का जो एनवायरनमेंट था या डिसिप्लिन था वो उससे हेट करता था और हमेशा उसका टीचर्स के साथ क्लैश रहता था। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर that he left the school for good. Stifled means unable to breathe, suffocated, दम घुटने लगना। अब उसको कैसा सफोकेशन महसूस होने लगी स्कूल के लिए और उसने स्कूल को छोड़ दिया कुछ अपने बेटर फ्यूचर के लिए, अच्छे के लिए। द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स। और प्रीवियस ईयर, उससे पहले ही साल जो एल्बर्ट के पेरेंट्स थे वो कहाँ मूव कर गए? मिलान। मिलान इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस। वहाँ मूव कर गए और अपने सन को अपने रिलेटिव्स के पास छोड़ गए। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन एल्बर्ट आइंस्टाइन गोट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल दैन म्यूनिक। काफ़ी लंबे डिस्कशन के बाद क्या था, एल्बर्ट ने अपनी विश को कंटिन्यू किया कि वो अपनी एजुकेशन कहाँ कंटिन्यू करना चाहता है? जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड, जहाँ जर्मन बोली जाती है वहाँ स्विट्ज़रलैंड में वो अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करना चाहता है, एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहता है। और वो सिटी क्या है? जो म्यूनिक है उससे भी ज़्यादा लिबरल है। लिबरल मीन्स फ्रीडम होना, जहाँ पे एनवायरनमेंट फ्रीडम का होना। सो दैट्स द एंड ऑफ फर्स्ट पार्ट. Hope you understand this chapter. Thank you.